محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نمازوں میں کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کو صحیح طرح مکمل ادا نہیں کرتا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ مہاراشٹر سے بھارتیہ راشٹر سمیتی پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری، جس کے تحت مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین و دیگر شعبے جات سے تعلق رکھنے والے مشہور معروف شخصیات نے سی ایم KCR کے ہاتھوں BRS پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں ہندوستانی باکسروں نے تاریخ رقم کر دی، 3 تمغے یقینی، حسام الدین کا غیر معمولی مظاہرہ۔ متحدہ ضلع کے دھاتری ٹاؤن شپ میں بنیادی سہولیات کی فراہمی پر مبنی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ برقع پوش لڑکی کو تماچا رسید کرنے والا سب انسپکٹر معطل، جگتیال ضلع کے مسلمانوں کے شدید احتجاج اور مجلسی قائدین کے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی کے بعد فیصلہ۔ اربن رکن اسمبلی نظام آباد بیگالہ گرج گپتا کے ہاتھوں شہر کے کلاسک فنکشن ہال میں شادی مبارک چیکس کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ مسجد اسلامیہ محلہ ہتائی میں گرمائی کلاسز کا آغاز، عوام الناس سے استفادے کی اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ برقع پوش لڑکی کو تماچا رسید کرنے والا سب انسپکٹر معطل، جگتیال ضلع کے مسلمانوں کے شدید احتجاج اور مجلسی قائدین کے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی کے بعد فیصلہ۔ تلنگانہ کے جگتیال شہر میں برقع پوش لڑکی کو تماچا رسید کرنے اور اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے واقعے میں محکمہ پولیس نے تادیبی کارروائی کے تحت خاطی سب انسپکٹر پولیس جگتیال رورل پولیس اسٹیشن انل کو معطل کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جگتیال ضلع کے علاوہ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا اور خاطی سب انسپکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع کے بعد صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی MP نے ضلع SP سے بات چیت کی تھی اور کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ صدر مجلس کی ہدایت پر آج مجلس کے رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج و نظام آباد ڈپٹی میئر ادریس خان نے کریم نگر، جگتیال اور نظام آباد ضلع کے مجلسی قائدین کے ساتھ جگتیال کا دورہ کیا اور متاثرہ لڑکی سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ ان کے ہمراہ کریم نگر مجلس کے صدر غلام احمد حسین، سابق ڈپٹی میئر عباس سمیع، نظام آباد کے مجلسی قائدین، جگتیال مجلس کے صدر یونس ندیم، کوٹلہ مجلس کے صدر محمد صابر اور دیگر موجود۔ بعد مجلسی قائدین نے ضلع SP اور DSP سے متاثرہ لڑکی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اس واقعے پر شدید احتجاج کیا اور خاطی سب انسپکٹر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر انسپکٹر جنرل ملٹی زون 1 چندر شیکھر ریڈی نے سب انسپکٹر انل کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے۔ واضح ہے کہ منگل کو محمد فرح نامی نوجوان لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ RTC بس میں سفر کر رہی تھی۔ اس دوران کریم نگر بس اسٹیشن میں سب انسپکٹر انل کی بیوی بھی اسی بس میں سوار ہو کر فرح اور ان کی والدہ کے ساتھ سیٹ کے مسئلے پر جھگڑا کیا تھا، جس کے بعد سب انسپکٹر انل نے بس جگتیال پہنچنے کے بعد بس کو درمیان میں روک کر لڑکی سے بحث کی اور تماچا رسید کر دیا تھا۔ نقیب ملت کی نمائندگی پر جو سب انسپکٹر انل تھے ان کو آج سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے SP صاحب سے کہ 354 کیس بک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے وہ سب انسپکٹر نے بچی کے ساتھ رویہ کیا ہے اس کے اوپر جو دفعے لگے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، جس کے اوپر SP صاحب نے نہ صرف وعدہ کیا بلکہ امیڈیٹ وہ دفعوں کو لگانے کے لیے بھی پرامس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک دوسرا ڈیمانڈ یہ تھا، کیونکہ یہ بچی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کافی ایکسپوز کیے ہیں، مطلب بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا
تو ہم کو اور دوسرے لوگوں سے بھی ڈر اور خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچی کو پروٹیکشن ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی چیز خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ناگواری واقعہ نہ پیش آنے کے لیے. اس کے لیے خاص طور سے میں ایس پی صاحب کو یہ کہا ہوں کہ بچی کا پروٹیکشن دینا آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کو آپ جیسے بھی ہو سکتا ہے یہ کیس کو فاسٹ ٹریک پہ چلائیے اور اے انیل کو امیڈیٹ اریسٹ کریے. یہی چیز ہمارا ڈیمانڈ تھا, ہماری پارٹی کا بھی ڈیمانڈ تھا. میرے ساتھ میں نظام آباد کے ڈپٹی میئر جناب ادریس صاحب اور سابقہ ڈپٹی میئر کریم نگر سمیع صاحب اور کریم نگر کے صدر احمد حسین صاحب, یہاں کے صدر یونس صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے اطراف و اکناف کے کافی صدر سب کے سب موجود ہیں. ہم نے یہاں آ کر یہی احتجاج کیا ہے کہ اس کے اوپر انصاف ملنا فراق و ضروری ہے. اسی لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں. میں جتنے بھی لوگ آج میٹنگ میں شریک ہوئے ان سب کا تہہ دل سے نہ صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بلکہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, چونکہ تلنگانہ کے اندر یہ ماحول نہیں بننا چاہیے. اگر ایسے کوئی پولیس آفیسر ہے جس کی مزاج کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو ایسی چیزوں کو حکومت یہ چاہیے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ایسے لوگوں کے اوپر ایکشن لے تاکہ آئندہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو. ہماری یہی انٹرنیشنل ووشو ٹورنامنٹ ماسکو ووشو اسٹار 2023 میں شاہنظام آباد سے تعلق رکھنے والی لڑکی فاریہ خانم نے حاصل کیا گولڈ میڈل اور شیخ تبریز و شیخ شفیع الدین کے نام برونز میڈل. ان کی نظام آباد آمد کے موقع پر جشن کا ماحول, موٹر سائیکل پر مبارکبادی کے ساتھ کیا گیا ان کا شہر میں استقبال. آج شہر نظام آباد کے عوام کے لیے بڑی ہی خوشی کا دن ہے کیونکہ شہر نظام آباد میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑیوں نے اس شہر کا نام مرکزی و بین الاقوامی سطح پر روشن کرتے آ رہے ہیں. اور آج ایک اور شہر سے تعلق رکھنے والی لڑکی جس کا نام فاریہ خانم ہے, انہوں نے بین الاقوامی سطح پر جاری انٹرنیشنل ماسکو ووشو اسٹارز 2023 انٹرنیشنل ووشو ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا اور اپنے شہر و ملک کا نام بین الاقوامی سطح پر بلند کیا. اور آج ان کی نظام آباد آمد کے موقع پر انچارج کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین حلقے 31 نے نظام آباد کے ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی انجام دی. واضح رہے کہ ان کے ہمراہ اس کمپٹیشن میں شہر نظام آباد کے 2 اور کھلاڑی جن کا نام شیخ تبریز اور شیخ رفیع الدین نے بھی اپنا کھیل کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے برونز میڈل حاصل کیا. یہ تینوں طلباء شہر نظام آباد کے مشہور معروف ووشو پلیئر جناب عبدالعمر جو کہ ضلع نظام آباد ووشو ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہے, ان کی شاگرد ہے. اس موقع پر ان کو انچارج کارپوریٹر محمد منور علی نے بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے تہنیت انجام دی اور نظام آباد ریلوے اسٹیشن سے موٹر سائیکل ریلی کے ذریعے ان کا شہر میں شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ کوآپشن ممبر ارشد پاشا, محمد معین الدین, احمد رضا صدر غریب نواز مسجد, سہیل چاوش کے علاوہ نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی. السلام علیکم. میں فاریہ خانم انٹرنیشنل ماسکو ووشو چیمپئن شپ میں میرا گولڈ میڈل آیا ہے. فرسٹ میں تھینکس کرتی ہوں میرے اللہ تعالیٰ کو جس کے وجہ سے میں ادھر تک آئی ہوں, اور سیکنڈ میرے پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے میں ادھر تک آئی, اور میرے کوچ کی وجہ سے انہوں نے مجھے ٹرین کیا ہے. ان کے وجہ سے میں یہاں یہ اسٹیج پہ میں یہاں ابھی کھڑی ہوں. اور یہ جو میرا جو جرنی ہے نا, یہ اتنا سا نہیں ہے, میرا جرنی بہت بڑا ہے. میں جب چھوٹی تھی تب سے میرا گیمنگ کریئر سٹارٹ ہوا ہے, تب سے لے کے اب تک میں نے بہت اسٹرگل کیا ہے. اور یہ اسٹرگل کے پیچھے میرے پیرنٹس اور میرے کوچ کا ہاتھ ہے بس. اور تھینکس ٹو آل مائٹی. اور میں آج کل کی جنریشن جو گرلس ہے وہ لوگ کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ گرلس کین ڈو ایوری تھنگ. بینگ اے مسلم گرل اٹس ہارڈ, آئی کین انڈرسٹینڈ, بٹ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, یو کین ڈو اٹ. یہ ہے کہ بینگ اے مسلم گرل یہ بہت ہارڈ تھا میرے لیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بہت 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 ایزی تھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بہت ہارڈ تھا. یہ نارمل تھا. یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ چاہو تو کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے. بالکل آپ اپنا کوشش تو کریے, کر سکتے ہیں بالکل. نیور گیو اپ. اور گرلس ہے, گرلس کے لیے یہی میسیج ہے کہ آئی ایم آلسو اے گرل. اور میرا پورے ووشو کے جو ہم لوگ کا گروپ ہے, ووشو فیملی میں سب سے پہلا میڈل میرا گولڈ میڈل آیا ہے. تو ایک لڑکی چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر سکتی. وی کین ڈو دس. اپنا بیسٹ رکھیے. آج یہاں نظام آباد کے لیے خوشخبری ہے کہ
जो मास्को वुशु स्टार इंटरनेशनल चैम्पियनशिप था उसके अंदर निज़ाम पूरे स्टेट के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए 6 मेडल आए, जिसमें 1 गोल्ड 5 ब्रॉन्ज आए। जो शहर निज़ामाबाद को 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज आए। जैसे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है सो 1 ब्रॉन्ज आया मेडल, और 1 ब्रॉन्ज जो है सो 2 ब्रॉन्ज जो है सो निर्मल डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है, जो CRPF सद्दाम हुसैन है, जो मेरा स्टूडेंट है। बहुत फ़ख्र की बात है कि निज़ामाबाद के लड़के और लड़कियाँ भी जो सो आगे बढ़ के वुशु सीख के जो सो मेडल जीत के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के क्लासिक फंक्शन हॉल में शादी मुबारक चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। आज शहर के क्लासिक फंक्शन हॉल में अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बेहतरीन स्कीमात फराहम किए जा रहे हैं और शादी मुबारक भी इन्हीं का एक हिस्सा है। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी स्कीम है जो किसी भी रियासत में मौजूद नहीं सिवाय तेलंगाना के। वज़ीर आला जनाब KCR की जानिब से दिए जाने वाली स्कीमात बेमिसाल है, जिसकी पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं। इस मौके पर इनके हमरा मियां नीतू किरण, जिले सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, मुकामी कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 51 अब्दुल अली बागबान, BRS कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस, अकबर हुसैन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर सरफराज खान, शेख सलीम के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। आप पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बात करते इलेक्शन के टाइम पे, चांदनी का मोरी बनाते, सोने का रोड बनाते, यहाँ तक भी बात करते, लेकिन इलेक्शन के बाद पलट के भी नहीं देखते। लेकिन हमारा KCR साहब ऐसा नहीं है, जो वादा किया उससे ज्यादा किया, वादा से भी ज्यादा किया। पहला 51,000 से शुरू हो गए, 51,000 से ये स्कीम शुरू हो गए, उसके बाद 75,000 किए, उसको 25,000 बढ़ा के। फिर जैसे एक बार हमारे MLAs बैठे थे, पूछे उन्हें कि भाई शादी मुबारक के लिए हम 75,000 किए तो लोग खुश है क्या? हम बोले सब खुश है, वो 75,000 लेके थोड़ा समोसा मिठाई चाय दे के शादी कर रहे। अरे ऐसा कैसा होता? शादी बिरयानी खिला के होना चाहिए, खिलाने के बाद शादी करना। समोसे से शादी कैसा करते? सब 75,000 रुपए से फिर समोसा चाय आ रहे हैं, नया कपड़े आ रहे हैं। नहीं, शादी बिरयानी के साथ होना चाहिए, इसीलिए हम 25,000 और बढ़ा के 1,116 रुपए करते और ऐलान किया। तो अभी तक मैं जो मस्जिद इस्लामिया मोहल्ला हताई में गरमाई क्लासेस का आगाज, अवामुन नास से इस्तिफादे की अपील। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी स्कूल के तलबा व तालिबात की गरमाई तातिलात को कारआमद बनाने और बच्चों को इस्लामी तालीम व तरबियत से आरास्ता करने के लिए मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद में एक माह का कोर्स मुरतब करके आज से तालीम का आगाज किया गया है। पहले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह 30 तलबा शरीक रहे। वाज़ रहे कि इस मकतब में रोजाना सुबह 9:30 बजे ता 1 बजे माहिर असातिज़ा कराम की निगरानी में नूरानी कायदा नाज़िरा कुरान और हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ पढ़ाने का एहतमाम हो रहा है। इसके अलावा दीनियात के हवाले से अकायद में तौहीद, रिसालत, आखिरत व दीगर बुनियादी बातें बताई जाएगी। नेज़ इस्लामी तरबियत व मुआशरत के सिलसिले में खाने पीने, सोने और रहने के आदाब और अखलाकियात पर भी यौमिया दर्स दिए जाएंगे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया ने अहलियान मोहल्ला व मुसल्लियान मस्जिद से ख्वाहिश की कि वो इस समर कैंप से अपने बच्चों को इस्तिफादा करवाए। हाफिज राशिद, हाफिज मोहसिन, सैयद मोहम्मद इमरान शरीफ व दीगर मुंतज़िमीन ने इंतज़ामी कमेटी मस्जिद इस्लामिया का शुक्रिया अदा किया और हुस्न इक़दाम को सराहते हुए दुआओं से नवाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को जो गरमाई तातीलात और स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, उन छुट्टियों को कारआमद और मुफीद बनाने के लिए और बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत से करीब करने के लिए दीनी अकायद और इब्तिदाई बुनियादी बातों से वाकिफियत हासिल करवाने के लिए मस्जिद इस्लामिया मोहल्ला हताई में आज से यानी 11 मई से लेकर 11 जून तक 1 महीने का कोर्स मुरतब किया गया और फिर बेहतरीन असातिज़ा किराम की खिदमत हासिल करके इन तलबा की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान और अहलियान महल्ला और मुसल्लियान मस्जिद के कि उन्होंने इस जानिब तवज्जो फरमाई और इसकी ज़िम्मेदारी हमको दी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही 30 से ज़ायद तलबा और तालिबात यहाँ पर शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने तक ये मुकम्मल प्रोग्राम जारी रहेगा। हम गुजारिश करते हैं तमाम ही
محلے والوں سے اور تمامی مسلمانان شہر نظام آباد سے کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلوائیں تاکہ ان کی یہ چھٹیاں کارآمد اور مفید بن سکے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام مسلسل 1 مہینے تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک خدمت کرنے والوں کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور بچوں کو صحیح طور پر دین کی ابتدائی بنیادی باتوں سے اور عقائد سے اللہ پاک واقفیت کے لیے ہم تمام کو محنت کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شاہ نظام آباد کے نیک تربیتی مراکز میں ٹریننگ حاصل کرنے والے 133 خواتین کو اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کے ہاتھوں سلائی مشینوں کی فراہمی عمل میں لائی گئی. شہر کے سبھاش نگر میں واقع ملے کیمپ دفتر پر اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے شہر کے نیک تربیتی مراکز میں ٹریننگ حاصل کرنے والے 133 خواتین کو سلائی مشینوں کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ CM KCR کی قیادت میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو روب عمل میں لایا گیا ہے اور خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے مقصد کے تحت روزگار کے تربیتی مراکز کا قیام عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا. అప్గ్రేడేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఎలక్ట్రీషియన్ ఉన్నాడు, ఆ ఎలక్ట్రీషియన్కి పని కరెక్ట్గా నేర్పించడం కోసం అక్కడ ఒక సిస్టమేటిక్ ఒక గోడ ఉంది. ఆ గోడని తుక్కు శుద్ధితో కొట్టచ్చు, మిషన్తోని డైరెక్ట్గా కట్ చేయొచ్చు. సో ఆయనకు శుద్ధితో కొట్టేది మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఇక్కడైతే న్యాక్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక నీట్గా కట్ చేసి ఆ గోడ డ్యామేజ్ కాకుండా క్రాక్స్ కాకుండా ఒక స్కిల్తో నేర్పిస్తారు. ఏసీ మెకానిక్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నగరంలో కలెక్టరేట్ పక్కనే ఐటీ హబ్ పక్కనే న్యాక్ బిల్డింగ్ కూడా తయారవుతూ ఉంది. మరి దాదాపు ఒక నెల 2 నెలల్లో అది కూడా ఇనాగ్రేషన్ అయిపోతుంది. మంచి వాతావరణంలో ఒక కొత్త బిల్డింగ్లో అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే. शाह निज़ाम आबाद से मुलहिका मल्लाराम में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए धातरी टाउनशिप में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर मबनी कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारान को दी हिदायत. शाह निज़ाम आबाद में धातरी टाउनशिप के तहत प्लाटों की फरोख्त के लिए अब तक 2 मरतबा मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत हराज का इनेकात अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं. इसके पेश नज़र धातरी टाउनशिप में तमाम तरह की सहूलियात को दस्तियाब में लाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट के चैम्बर में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा चंद्रशेखर के हमरा मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के साथ धातरी टाउनशिप से मुताल्लिक़ा पेशरफ्त कामों का जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया, जिसके तहत अब तक रोड की तामीर मुकम्मल होने के ताल्लुक से वाक़िफ़ियत हासिल की और अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पानी की सहूलत व बरक़ी की फराहमी के अलावा STP जैसी सहूलियात की फराहमी पर मबनी कामों को जंगी ख़ुतूत पर मुकम्मल करने और ख़ास तौर पर बरक़ी व साफ़ शफ़ाफ़ पीने का पानी की फराहमी पर मबनी कामों को अहमियत देते हुए फिलपुर दस्तियाब में लाने के लिए इक़दामात करें और ओवरहेड वाटर टैंक की तामीरी कामों को फौरी तौर पर शुरू किया जाए. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से मुताल्लिक़ा कामों को जल्द बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जरिए तामीरी कामों को अंजाम देने के लिए मुताल्लिक़ा कंपनी के नुमाइंदों से रब्ता पैदा करने की तजवीज़ दी. शादी तक़ारीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद. शाह निज़ाम आबाद में पहुंचने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पहले मरहले के तौर पर भूमरेड्डी कन्वेंशन में मुनाक़िदा वज़ीर के करीबी रिश्तेदार पी श्रीनिवास रेड्डी की दुख्तर की शादी तक़रीब के अलावा LV रमना रेड्डी के फर्जंद की शादी तक़रीब में वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व इनकी अहलिया निरीजा रेड्डी ने अफराद ख़ानदान के हमरा शिरकत की. नए शादीशुदा जोड़े को शादी की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की. बातज़ा निर्मल ज़िले के मराकज़ पर दोनचंद से ताल्लुक़ रखने वाले पेद्दी रेड्डी लिंगा रेड्डी के फर्जंद की शादी तक़रीब में शिरकत की और वहाँ से पेरकेट बालकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले टी चिन्नैया की दुख्तर की शादी तक़रीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की. इसी तरह से कमरपल्ली मंडल चोटपल्ली में गोपीदी राजेश्वर रेड्डी की दुख्तर की शादी तक़रीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद पेश की और वहाँ से पल्लीकोंडा देहात में पहुँचते हुए हाल ही में बिजली गिरने के सबब मेंढे फौत होने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान से वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन लिया. बातज़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में ज़िम्मेदार अहदेदारान के साथ धान की खरीदारी के ताल्लुक जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया. ज़िले बिहार सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने आरमूर शहर के वार्ड नंबर 26 से वाबस्ता कायदीन के साथ तरक्याती कामों के ताल्लुक से जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया.
आर्मर हल्का असम्बली के तमाम देहातों की तरक्की के लिए नजर मरकूज करने रुकन असम्बली आर्मर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिला बीआरएस पार्टी सदर जीवन रेड्डी ने अंकापुर में अपनी रिहाइश गाह पर वार्ड नंबर 26 के कायदीन से जायजा इजलास और तरक्याती कामों से मुताल्लिक एक अहम इजलास मुनाकिद किया, जिसमें आर्मर मंडल के मारमपल्ली, नंदीपेट मंडल, आयलापुर, वेलमल, टुंडाकुर, वेंदल, तलवेदा, चिमराजपल्ली, लकमपल्ली, सीएच कंडूर के कायदीन से अलग अलग इजलास मुनाकिद करते हुए देहातों की तरक्की के लिए तफसीलात हासिल की और ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की तरफ तवज्जो दिलाई। मज़ीद तरक्याती कामों के मुताल्लिक दरियाफ्त और रकमी मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। पार्टी कायदीन से कहा कि आर्मर हल्का असम्बली में तरक्याती कामों और फलाह स्कीमात से मुताल्लिक हर घर तक पहुँचकर अवाम को वाकिफ करवाने पर जोर दिया। शहर के भुमरेड्डी कन्वेंशन में मुनक्किदा पी श्रीनिवास रेड्डी की दुख्तर की शादी तकरीब में राज्यसभा मेंबर के सुरेश रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दी मुबारकबाद। जिले निजामाबाद के भुमरेड्डी कन्वेंशन में मुनक्किदा पी श्रीनिवास रेड्डी की दुख्तर की शादी तकरीब में राज्यसभा मेंबर के सुरेश रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को शादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। बालकोना मंडल के ईसानगर देहात में वाक़ दुब्बा चौरास्ते में ZPTC फंड से क़याम अमल में लाए गए आई मार्क्स लाइट का ZPTC दासरी लावनिया ने सरपंच एम तुलसी के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया। बालकोना मंडल के ईसानगर देहात में वाक़ दुब्बा चौरास्ते में ZPTC फंड से क़याम अमल में लाए गए आई मार्क्स लाइट का ZPTC दासरी लावनिया व सरपंच एम तुलसी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि SFS फंड 1,40,000 रुपये मालीती रकम से मरकजी चौरास्ते पर लाइट का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ MVP एम नागाभूषणम, नायब सरपंच श्रीनिवास गौड़, TRS सीनियर कायद दासरी वेंकटेश, मौजे के TRS सदर शरद, वार्ड मेंबरान स्वामीनाथ, गंगा रेड्डी, VDC सदर मल्ला रेड्डी, कायदीन प्रसाद, गणेश, V श्रीनु, मनोहर, बालाकृष्णा, राजानंदा व दीगर ने शिरकत की। महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी में बरोज़ चाहशुमा शमूलियत का सिलसिला जारी, जिसमें महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कायदीन व दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ शख्सियात ने CM KCR के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। आज रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कायदीन व दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ शख्सियात ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें हैदराबाद में BRS के बानी व सरबराह KCR ने गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ सियासी कायद अन्ना भाऊ साठे, सचिन साठे, वाई वैभव कदम, साबिक़ा ZP मेंबर प्रमोद विठल जाधव, साबिक़ा ZP मेंबर सिल्वर सितारा, राहुल PS मेंबर अजहर खान, साबिक़ा इंडियन एयरपोर्ट वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट वैभव वसंत राव कदम, इंडियन एयरपोर्ट वर्कर्स यूनियन रीजनल सेक्रेटरी श्रीनिवास, सारी एलिगेटी, साबिक़ा कॉर्पोरेटर भिवंडी रामादास घरत, ZP मेंबरान और शिवा सेना ठाकुर से 2024 में MLA की उम्मीदवार शंकर गाड़ से शंभू राज्य जय बालाकृष्णा पवार, साबिक़ा सरपंच विनोद मोटेगे वेने, NCP और प्रेसिडेंट नागपुर डॉक्टर असलम बारी, सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम विदर्भा मौलाना जुनैद कासमी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंगोली मौलाना कासमी अब्दुल लतीफ, जमीयतुल उलमा हिंद सदर नांदेड़ AIMIM मौलाना शफीउल्लाह साहब, आम आदमी पार्टी रियासती जनरल सेक्रेटरी महेश टेरी पाटिल, हनुमंतु राव मोते, दिलीप राव गायकवाड़, संतोष सूते, सुभाष टेली पाटिल, ओमकार एरकार, दीपक तांबे, राम रघुनाथ चाटे, साबिक़ा पंचायत समिति चेयरमैन त्रुगनाथा पस्ते, शक्कर फैक्ट्री डायरेक्टर अनुसया बिकर, BJP युवा मोर्चा श्री कृष्णा चाटे, वसंत चाटे, केशव, योगेश सकारा, जिले यूथ नायब सदर रामेश्वर, श्रीकांत कामले, कपिल दवर, राज भीमराव पाटिल, सरपंच नवीन सदर, अशोक, ओम प्रकाश, हनुमंत मात्रे, यभव शेट्टी, टीचर्स एसोसिएशन संभाजी मास्के, समाता पार्टी महेश, भीम आर्मी सेना, चंद्रशेखर घाड़े, संभाजी बेगरेट, नीलेश, संदीप मोगे, शिवाजी पवार, साजिद सैयद, नवनाथ जाधव, दयानंद गौतम, कांग्रेस कमेटी लायगांव, प्रिया नागा देवता व दीगर ने CM KCR की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपनी मियादों में अवामी फलाह बहबूदी के साथ जो कारकर्दगी और स्कीमात को पेश किए, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में ज़बरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है और आने वाले दिनों में TRS हुकूमत की अवामी पॉलिसियों में मज़ीद इजाफा होगा और
मौजूदा सूरत हाल में टीआरएस पार्टी तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर मजीद तेजी के साथ गामजन करते हुए रियासत तेलंगाना में मुकीम हर एक तबकात के साथ एक सा बर्ताव और इंसाफ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत का ऐलान है कि नज़्म नक्श में शफाफियत, फलाही और तरक्याती स्कीमात से सम्राट आदमी तक पहुँचाना है और टीआरएस हुकूमत ने अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों पर अमलावरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए तरक्याती इक़दामात के अलावा हर तरह की सहूलतों और मराहतों को फ्राहम करने में मसरूफ़ है, जबकि साबिक़ा हुकूमत अवाम को बजाय अपने मफादात को तरजीह देते हुए अवाम को सिर्फ गुमराह किया है, जबकि टीआरएस हुकूमत इस सुनहरे मौके को सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले बिहार सदर आर्मूर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, चेनू रुकन असम्बली बालका सुबान बिहार सीनियर कायद, रियासती सिविल सप्लाई चेयरमैन रविंदर सिंह, महाराष्ट्र बिहार कायदीन मानिक कदम, शंकरन्ना बिहार जनरल सेक्रेटरी हिमांशु तिवारी व दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तानी बॉक्सरों ने तारीख रकम कर दी, 3 तमगे यकीनी। ताशखंड में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी बॉक्सर ने तारीखी रकम कर दी। बुध को चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के 3 तमगों की तस्दीक हो गई है। टूर्नामेंट की तारीख में ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान ने एक ही सीजन में इतने ज्यादा तमगे जीते हैं। निशांत देव, मोहम्मद हुसामुद्दीन और दीपक बोरिया ने अपने अपने वजन के जिम्रे में क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में दाखिला हासिल किया है। टॉप 4 में दाखिल होने से इन तीनों के तमगे कन्फर्म हो गए हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में 4 खिलाड़ियों को तमगे मिलते हैं, यानी तसल्ली देने वाला कांसे का तमगा भी दिया जाता है। तीनों बॉक्सर 12 मई को अपने अपने सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। यहाँ बता दें कि हिंदुस्तान अब तक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीत सका है। हिंदुस्तानी बॉक्सरों ने 2019 के एडिशन में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जब अमित पंघल ने चांदी और मनीष कौशिक ने कांसे का तमगा जीता था। दीपक बोरिया ने चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम वेट जिम्रे के क्वार्टर फाइनल मैच में अजरबैजान के अमित रस्तमोव को 5-0 से शिकस्त दी। दीपक चैंपियनशिप में तमगा जीतने वाले 8वें हिंदुस्तानी बॉक्सर बन गए। कन्या लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए अजीम तोहफा होने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की रूरल मंडल के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी को माली तौर पर सहारा देने के लिए मुतारफ कराई गई और इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के दिल के करीब की स्कीम है और लोगों ने इस स्कीम की तारीफ की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के अज़्म के साथ कई फलाही स्कीमात को मुतारफ करवाने का इजहार किया। मोरताल मंडल के मुकाम पर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर के पास एमपीपी शिवलिंगो श्रीनिवास की सदारत में सीएम कप टूर्नामेंट इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीपी शिवलिंगो श्रीनिवास की सदारत में सीएम कप टूर्नामेंट इजलास मुनाक़िद किया गया। बातज़ा एमपीपी ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम कप टूर्नामेंट 2023 मंडल सतह के तौर पर तिम्मापुर देहात में इस माह की 16 तारीख से आगाज अमल में लाया जाएगा। लिहाजा दिलचस्पी रखने वालों को वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी मुकाबलाजात में शिरकत करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में तहसीलदार भावैया, जेडपीटीसी बदम रवि, एमपीटीसी राजपाल, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा दीगर ने शिरकत की। ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు సీఎం కప్ అనేది మా మౌతాడ్ మండలంలో నిర్వహించబడుతూ ఉన్నది. దీనికి 18 సంవత్సరాలు 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల 36 సంవత్సరాల వరకు యువకులు మరియు యువకుల ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చు. ఒక్కొక్క టీము వాళ్ళు गौड़ तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए हादसाती बीमा लाए जाने के पेश नज़र सीएम केसीआर और रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़, वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को तिम्मापुर गौड़ संगम के ज़ेरे निगरानी में दूध से नहलाया गया। मोरताल मंडल तिम्मापुर गौड़ संगम की ज़ेरे निगरानी में मुनक़िदा तस्वीर को दूध से नहलाते हुए प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मोरताल मंडल गौड़ संगम सदर विक्रम गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से गौड़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हादसाती बीमा मुतारफ़ करवाने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। बात तमाम गौड़ तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से सीएम केसीआर, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़, वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। తిమ్మాపూర్ గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో గీతా కార్మికులకు 5 లక్షలు ఇన్సూరెన్స్ చనిపోతే 5 లక్షలు ఇచ్చిన దానికి కృతజ్ఞతగా పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. దీనితో పాటు మాకు కొన్ని తెలంగాణ జిల్లాలలో ఈ సొసైటీ కాకుండా టీఎఫ్టీలు ఉన్నాయి.
नंदीपेट मंडल के मराकज़ पर आईकेपी वीओए की जानिब से नंदीपेट मंडल के मराकज़ पर आईकेपी वीओए की जानिब से इनेक़ात अमल में लाए जाने वाली हड़ताल 18वें यौम में दाखिल। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर आईकेपी वीओए की जानिब से इनेक़ात अमल में लाई जाने वाली हड़ताल आज 18वें यौम में दाखिल होने के पेश नज़र आज वीओए ने एमपीडीओ दफ्तर के सामने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलपुर हल करने के लिए मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल की निशानदही करते हुए 18,000 रुपये एजाज़ी रकम देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में सुजाता, मीना, स्वप्ना, रोजा, नागा आजू ने शिरकत की। धरनी टाउनशिप में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक से जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने जिम्मेदार अहदेदारान से जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में धरनी टाउनशिप में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए अहदेदारान से जायज़ा इजलास का इनेक़ात अमल में लाया गया, जिसमें बीटी रोड, ड्रेनेज और बरक़ी की सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए दरकार तजावीज़ को अहदेदारान फौरी तौर पर तैयार करते हुए आला अहदेदारों को रवाना करने का इजहार किया। मकसद के मुताबिक मिलिंग ना करने वाले राइस मिलर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का जिले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने किया इजहार। कामरेड्डी कलेक्टर दफ्तर में आज जिले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन की सदारत में राइस मिलर इंतजामिया के साथ इजलास का इनेक़ात अमल में लाया गया, जिसमें राइस मिल इंतजामिया मकसद के मुताबिक मिलिंग ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में DSO पद्मा, सिविल सप्लाई जिले मैनेजर अभिषेक सिंह, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा राइस मिलर इंतजामिया ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में धान खरीदारी मराकज़ पर रायतु बंधु स्कीम के 5 साल जश्न जिले रायतु सामान्य समिति सदर अंजू रेड्डी के ज़ेर निगरानी में शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया गया। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में धान खरीदारी मराकज़ पर रायतु बंधु स्कीम के 5 साला जश्न का जिले रायतु सामान्य समिति सदर अंजू रेड्डी के ज़ेर निगरानी में शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया गया। धान खरीदारी मराकज़ किसानों के हमरा केक कट करते हुए रायतु बंधु तकारीब मनाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत के वज़ीर और मौजूद तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी CM KCR दोनों भी किसानों के बेटे होने के बायस किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के तहत रायतु बंधु स्कीम को मुतारफ़ करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी, जिसके तहत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कायदीन व दीगर शोबे जात से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ शख्सियात ने CM KCR के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी बॉक्सरों ने तारीख रकम कर दी, 3 तमगे यकीनी, हुसामुद्दीन का गैर मामूली मुजाहरा। मुत्तहदा जिले के धातरी टाउनशिप में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर मबनी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारान को दी हिदायत। बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने वाला सब इंस्पेक्टर मोअत्तिल जगत्याल जिले के मुसलमानों के शदीद एहतजाज और मजलिसी कायदीन के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी के बाद फैसला। अर्बन रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गरज गुप्ता के हाथों शहर के क्लासिक फंक्शन हॉल में शादी मुबारक चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। मस्जिद इस्लामिया मोहल्ला हताई में गरमाई क्लासेस का आगाज, अवामुन्नास से इस्तिफादे की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।